इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, somehow we are not able to deal with that question. तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के या तो गलत कर आते हैं या फिर हम छोड़ कर आते हैं. We treat current affairs as a different subject, which is actually a wrong approach. Current affairs is actually your static subjects in action. Governance in action, IR, different scenarios, the changing geopolitics. If you see everything, the static in action is actually your current affairs. I am launching a particular series and that is called Disha Analytica. We will try to cover the governance aspect, the economic aspect, environmental aspect, the technological aspect, everything. It is not your daily news analysis. मेरा objective यहाँ पे ये है that you learn how to think in UPSC oriented manner. The frequency will be of weekly basis. So weekly we'll do analysis. People who are genuinely interested in all of this, they come and join me in the first episode after this video. So I welcome you all in Disha Analytica. We have seen a particular problem in our UPSC journey from quite several years that current affairs को लेकर के हमारे पास बहुत सारे sources हैं. We have YouTube videos, बहुत सारे daily news analysis, editorial analysis, n number of things on YouTube. And then we have the PDFs, the compilations that come from institutes. Also, daily blogs are there for your daily current affairs, daily editorials. इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, प्रीलिम्स में आ रहा है, मेंस में आ रहा है, somehow we are not able to deal with that question. Especially प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के या तो गलत कर आते हैं या फिर हम छोड़ कर आते हैं बिकॉज वी हैव नो आइडिया. एंड इतनी सारी चीजें हमने करंट अफेयर्स की कर ली, स्टिल अगर हम नहीं कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन, अगर हम थोड़े से भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं उसमें से, देन समवेयर द प्रॉब्लम नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड विद करंट अफेयर्स कवरेज एंड वी नीड टू मेक श्योर कि आगे अब हमें ये प्रॉब्लम ना आए. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, आप क्या करते हैं या हम सारे इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, वी ट्रीट करंट अफेयर्स एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग अप्रोच. दिस इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स is actually your static subjects in action. How? You can see polity in action through the parliamentary sessions, the debates, the lawmaking that happens, the various proposals or discussions that happen in your committees. So parliamentary committees, all of it, मतलब बहुत सारे हैं. We have governance in action. We see various levels of administration. And then we have IR, different, scenarios, the changing geopolitics, and the various terminologies. ये सारी हमारी news में आ रही होती हैं. ठीक है? There was a question on demographic winter that came from news only. There was a question on Gucci mushroom that was covered in news only. So, आपके एनवायरमेंट में व्हाट इज चेंजिंग, इवॉल्विंग और द मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक की एवोल्यूशन ही है. वी हैव ज्योग्राफी दैट इज चेंजिंग, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस थिंग्स एंड डिफरेंट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, वोल्केनोज हों, आपके विंड स्टॉर्म्स हैं, डिफरेंट न्यू इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते, वो सारी चीजें. सो एवरीथिंग, इफ यू सी एवरीथिंग, द स्टैटिक इन एक्शन इज एक्चुअली योर करंट अफेयर्स. सो यू कैन नॉट हैव अ प्रैक्टिकल रियलिटी और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट रियलिटी विदाउट कवरिंग योर करंट अफेयर्स. आप स्टैटिक पढ़ो, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पढ़ना, बट वी नीड टू बैलेंस इट विथ करंट अफेयर्स. बैलेंस करना जरूरी है, नॉट फॉर प्रीलिम्स, especially for your mains and PT, because your reasoning comes from that. आप जो reasoning यहाँ लिखते हो अपने mains के answers में, वो reasoning में जो आपके examples आ रहे हैं, जो committee notings आ रहे हैं,
जो बेस्ट केस स्टडीज आ रहे हैं, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर करंट अफेयर्स एनालिसिस. ओके, सो to deal with this problem specifically, I am launching a particular series, and that is called Disha Analytica. What are we going to do here? Disha Analytica mein we are going to understand the whole issue in a holistic sense, in a holistic manner. So हम देखेंगे कि why particular thing happened, ठीक है, उसका origin, the various linkages. यानी अगर हमने कोई एक न्यूज देखी, as you would have seen in my current affairs वाला वीडियो, how to read current affairs. So उसमें हमने क्या देखा था कि हमें एक न्यूज के साथ में हमने various linkages बनाए थे, right? So we will try to cover the governance aspect, the economic aspect, environmental aspect, the technological aspect, everything under one issue only. तो हम ये interconnections बनाना सीखेंगे basically यहाँ पे, which is very important because you need to make your preparation alive. आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ सकते, उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा. आपको देखना होगा कि अभी हमारे सामने ये कैसे हो रहा है, how is it happening, how the governance processes फंक्शन, क्या फंक्शनैलिटी है उनकी, ठीक है. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, द रोल, द इम्प्लीकेशंस, है ना. यहाँ पे भी अगर कोई इशू है तो उसकी फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, एंड द सॉल्यूशंस दैट वी कैन हैव एज अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, सिविल सोसाइटी का क्या हो सकता है, एनजीओज एंड ऑल, एसएचजीज, एवरीथिंग. सो we will try to think in a holistic manner. So here I will try to give you a thinking structure that will help you not only in coverage of current affairs but when you study your static subjects, तो वो आपको better समझ में आएंगे, है ना. So here in Disha Analytica we have some expectations from you also, ठीक है. So अगर आप ये देख रहे हैं, I need you to be a active एस्पिरेंट. ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपसे कि आप एक्टिव रहो, यू शुड नॉट बी अ पैसिव लिसनर. ठीक है, बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है, या फिर ये नहीं सोचना है कि हाँ दिस आई हैव डन, तो मेरा करंट तो डन हो गया, अब मेरे को और कुछ नहीं करना है. देयर विल बी असाइनमेंट्स, है ना, देयर विल बी सम ऑफ द होमवर्क जो आपको थोड़ा थोड़ा खुद से भी करना होगा. ओके, because I don't want you to be dependent, or I don't want you to just listen to a lecture and do not develop a comprehension skill. क्योंकि comprehension skill develop करने के लिए you need to read. Until unless you read by yourself, और reading कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, but उसको करे बिना आप comprehension skills develop नहीं कर सकते. If you have seen 2026 का paper, it was comprehension heavy. Misinterpretation of statement बहुत ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पे, chances were there, और उसकी वजह से कई सारे लोगों को आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है. सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट अगेन. ठीक है, सो खुद से करनी है चीजें. नेक्स्ट, यू विल हैव योर पेपर पेन विद यू, है ना, यानी आपकी नोटबुक रेडी होनी चाहिए. सो यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें लिखनी है और कुछ आप एडिशंस छोड़ोगे, तो आपका 2/3 में ही लिखोगे जो चीजें लिखनी है. दिस यू विल लीव ब्लैंक फॉर लेटर एडिशंस. और बाकी एक एक्टिव माइंड भी रखना है. ठीक है, अगर आपको लगे दैट यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड सर्च समथिंग ऑन गूगल, डू दैट. ये नहीं देखना है कि बस देख लिया एक बार में और खत्म, उसके बाद भूल गए. सो बी एक्टिव while gaining knowledge and gaining a perspective through the video. So this is my basic expectation from all of you. And now what will be the frequency? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? सी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है दिशा एनालिटिका से. इट इज नॉट योर डेली न्यूज एनालिसिस. ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा दैट यू आर जस्ट कवरिंग और यू नो गेटिंग द फैक्ट्स. ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स लेकर चले जाओ, है ना, चीजें कवर हो गई एंड यू आर डन. दिस इज नॉट योर डेली करंट news. This is not your knowledge base.
इन द सेंस कि आप यहाँ पे इसको एक अपना करंट का सोर्स नहीं बना सकते, ठीक है। इसके साथ में आपको शायद कुछ ना कुछ रेफर करना पड़ेगा, ईदर योर ओन नोट्स और अ पर्टिकुलर पीडीएफ, बिकॉज आपने देखा मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस बना लो एंड देन यू अटेम्प्ट द पेपर। ये करने के लिए बहुत लोग हैं, आप किसी को भी देख सकते हो, किसी को भी कहीं से फॉलो कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है दैट यू लर्न हाउ टू थिंक इन यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर, कि यूपीएससी को समझ जाओ आप, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझ जाओ, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सोचना है वो समझ जाओ। सो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं, ठीक है, देन दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। So, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको फॉलो करना है या नहीं करना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। इफ यू आर अ जेन्युइन एस्पिरेंट हु इज interested in understanding, in analysis, in forming judgments, then this is for you, ठीक है। तो ये पहले क्लैरिटी रखना इस बात की। नाउ कमिंग टू फ्रीक्वेंसी, सी द फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ वीकली बेसिस। तो वीकली वील डू एनालिसिस एंड वील ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम द वीक, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है, इशू हो सकता है, वट एवर इज देयर विच आई फील कि इसको हम करेंगे तो वील कवर अ लॉट ऑफ अदर डायमेंशंस एज वेल। सो इस तरह से वीकली होगा एंड देन देयर विल बी मंथली अ बिट ऑफ रिविजन। आई से ये एनालिटिका का एक तरह से रिविजन आप मान सकते हो, और वट एवर आई फील ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे फ्रॉम एवरी अदर परस्पेक्टिव, सो आई विल ट्राई टू कवर इट मंथली। सो ये फॉर्मेट ओवरऑल रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी वीडियोस की, ठीक है। थिंग्स नीड टू बी क्लैरिफाइड सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन। एंड देन हाउ टू यूटिलाइज इट टू योर लेवल। जैसे आप एक बिगिनर हो सकते हो, यू कैन बी एन इंटरमीडिएट पर्सन, आपकी प्रिपरेशन लेवल इंटरमीडिएट हो सकती है, आप मेंस लिख रहे हो सकते हो, आप पीटी अप्रोच कर सकते हो, कुछ भी होगा। So after this mains 2026, there will be a set of people who are expecting their name to be in the mains का result में। So वो interview के regarding भी देख सकते हैं, ठीक है। So beginner के लिए सी आपका एजेंडा और आपका मोटो यहाँ पे है फंडामेंटल्स क्लियर करना, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल कवरेज के लिए ये अच्छा होगा बिगिनर्स के लिए। फॉर इंटरमीडिएट लेवल you will be formulating connections between your static or current या फिर subjects. For people giving mains next year, okay, या फिर इस बार भी जो अभी recent में है थोड़े से cover होंगे, so you'll focus on your value additions. Value additions है ना, substantiation में क्या क्या use कर सकते हैं, इस पे focus करेंगे। And people who are giving PT, they can focus on opinion building, judgment और थोड़ा articulation, the basics. Obviously this is not a articulation class, but हाँ, you'll get to know about the keywords, the phrases that you can use in your PT later. तो ये broadly utilizing factors होंगे for different set of aspirants, ठीक है। यूटिलाइज कैसे करना है आपको पता ना होना चाहिए। नाउ इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन थिंकिंग पैटर्न्स, इन गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ किस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली में न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, और एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कवर्स करंट अफेयर्स, उसको पढ़ना कैसे है, रिटेन कैसे करना है। Because when we understand the current affairs in totality, तो हमें रटना कम पड़ता है। We are able to retrieve the information at the right time. तो एग्जाम हॉल में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि मुझे याद ही नहीं आ रहा। I have done this again and again। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे प्रीलिम्स में वो क्वेश्चंस तो पक्का सही हो रहे होते थे जो करंट अफेयर से आते थे, बिकॉज ऑफ माई रेगुलरिटी विद न्यूज़पेपर रीडिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रीड
it daily, but at least हाँ एक और चीज कि आप बेसिक हेडलाइंस तो पढ़ के ही रहोगे. सो इफ यू डू दैट ऑन डेली बेसिस, वीकेंड पे एक वीक में एक दिन आपका ये एनालिटिका के थ्रू थिंग्स विल गेट क्लियर. So you'll have a better picture in your mind. You'll have better understanding about a particular issue. So that is the only objective that I have while launching this series. So I hope that people who are genuinely interested in all of this, they come and join me in the first episode after this video. So I welcome you all in Disha Analytica. We'll meet soon. Till then, take care. Bye-bye.